Hello students. Now today we are going to learn about the 5th standard of English. The lesson name is Tom Whitewashes Offense. Now let's learn about the Time Whitewashes Offense second lesson, okay? This story is wrote by the Mark Twain. These pictures of Mark Twain is the most American's journalist, lecturer, novelist who acquired international fame for his travels. He wrote many adventure stories of boyhood, especially of the story we are going to learn about this story. That story name is Time Whitewashes a Fame. Now let's move towards the story. Now let's talk about the Tom Whitewashes Offense. The original extract from the Advantage of Tom Sawyer's Mark Twain. This story or this wrote by the Mark Twain. Okay. Now let's start. Saturday morning dawned and the summer world looked bright and fresh. Brimming with life, there was a song in every heart, a cheer in every face, and a spring in every step. The lotus tree were bloomed with the fragrance of blossom filled with the air. Cardiff Hill was green and vegetations and looked dreamy, inviting. What is the saying in there? सैटरडे शनिवार की सुबह आ गई थी और सभी गर्मियों की दुनिया उज्जवल और ताज़ी थी और जीवन के साथ तेज़ थी। हर दिल में एक गीत था और अगर दिल युवा का होठों पर जारी संगीत, हर चेहरे पर जय जयकार थी और हर कदम पर बसंत, टीड़े पेड़ खिले थे और बोर की खुशबू हवा में भर गई थी। कार्डिफ हिल गांव से परे और उसके ऊपर वनस्पति के साथ हरा था और एक मनोरम भूमि स्वप्न, दोष प्रजनन और आमंत्रित करने के लिए बस दूर तक लेट गया था। Tom appeared on the sidewalk with the bucket of whitewash and long-handled brush. He surveyed the fence, and the instant joy vanished from his heart, and deep melancholy settled down upon him. 30 yards of board fence 9 feet high. Life him seemed hollow and the existence huge burdens. Sighing and dipped in his brush and passed it along the topmost plank. Repeated the operation, did it again, compared the insignificant whitewash streak with the far-reaching continents and unwhitewashed fence and sat down with the tree box, discouraged. यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। टॉम था। जो टॉम है उसके हाथ में एक है ना बकेट थी कलर्स की, वाइट कलर की, और हाथ में बहुत बड़ा एक ब्रश था और वो बाहर आ रहा था बकेट लेकर। उसको काम दिया था, क्या काम दिया था उसको? 30 यार्ड्स उसको कलर करने थे। 9 फीट ऊपर था वो, बहुत 30 यार्ड्स उसको कलर करने थे वाइट से। 9 फीट ऊंचा था। वो देखकर उसको बहुत डिस्करेज फील हुआ क्योंकि इतना बड़ा काम उसको अकेले को ही दिया था। इसलिए वो है ना, एक बार उसने ट्राई किया, फर्स्ट टाइम टॉप मोस्ट ऑफ द उसने कलर कर लिया 1 यार्ड, 30 यार्ड में से 1 यार्ड कर लिया उसने, बट वही थक गया था और नीचे यहाँ पर डिस्करेज फील गिल्टी ऐसा बैठ गया था। Jim came skipping out of the gate with a tin pail. He was off टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम टाउन पम्प। वहाँ पर बहुत सारे नौकर मीन्स लोग थे, छोटे बच्चे जैसे काम करने के लिए एक आंटी ने रखा था। तभी यहाँ पर एक जिम नाम का लड़का आया बाहर से, उसको टाउन में से बकेट भर पानी लाने के लिए काम दिया था एक आंट ने। दैट वॉज चोर टॉम हेटेड टू डू अंटिल नाउ। बट टॉम का काम इतना था कि वो अपने काम से थक गया था, इसलिए उसने जिम को क्या कहा, देखो सुनो। He offered, say, Jim, I will fetch the water if you will whitewash some. टॉम ने कहा कि जिम, तुम मेरा ये यार्ड वाइट कर लो, मैं नीचे जाके पानी लाता हूँ, हम काम एक्सचेंज करते हैं। जिम shook his head and said, Cannot Tom, only Missy, she told me I got to go and get dishwaters and stop fooling ruins with anybody she said to speak. बट ये जिम ने कहा कि आंट पॉली ने मुझे ये काम सौंपा है कि ये काम तुम ही करो, किसी का काम एक्सचेंज नहीं करने का, यहाँ पर ऐसे पूरी वार्निंग दी थी उन्होंने। मास टॉम
Gwen's to ask me whitewash and so she told me long and tend to my own business. ये बोला आप ना खुद का काम खुद ही करो. Oh, never you mind what she said, Jim. That's way always talks. Give me buckets. I won't be gone. Only a minute. She won't ever know. टॉम ने बोला कि मुझे एक ही बार तो करने दो, मैं किसी को पता भी नहीं चलूँगा कि तुमने मेरा काम लिया, मैंने तुम्हारा काम लिया है. प्लीज़ करके रिक्वेस्ट. ही रिक्वेस्ट टू द जिम. Oh, doesn't Mass Tom? Jim, I will give you marble, I will give you the white alley. Tom's give the greediness of the James. Tom said to, please give me your work, I will give you the white alley. Jim began to waver, but before Tom could succeed, Jim went flying down the street, his pail, and Tom began to whitewash the fence vigorously. They had spotted Aunt Polly returning from the fields and the slipper in her hand and triumph in her eye. टॉम तो इस बार अनसक्सेसफुल हो गया बिकॉज टॉम सेड टू द जिम प्लीज गिव मी योर वर्क बट जिम सेड टू रिफ्यूज हर वर्क टू गिव टू द टॉम्स सो दैट जिम अपने पानी लेने के लिए नीचे स्ट्रीट में गली में चला गया और वहाँ से उन टॉम ने देखा कि टॉम पॉली इधर मेरे तरफ ही आ रही है. उसके हाथ में स्लीपर था, आंखों में तेज लेकर वो मेरे इधर आ रही है. उसको देख के ही टॉम ने आंट पॉली को देख के टॉम ने अपना काम फास्ट करने के लिए स्टार्ट कर लिया. But Tom's energy did not lose. He began to think the fun he had planned for this day, and his sorrows multiplied. Soon the village boys would come tripping along all sorts delicious expeditions, and they would make the world fun of him having to work. और तभी जब आंट पॉली वहाँ आई तब अपना काम उसने तेज़ से शुरू कर लिया था. वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे काम करने वाले जो अपना काम इंटरवल करते थे और अपने टॉम के पास आया करते थे. तभी टॉम के पास बहुत सारे लड़के आ गए और टॉम का फ़न उड़ाने लगे क्योंकि टॉम को बहुत सारा काम दिया था. दे वेरी थॉट टू बर्न हिम लाइक फायर. टॉम को बहुत जलन महसूस हो रही थी कि उसको इतना बड़ा काम दिया था. He got out his worldly wealth and examined bits of toys, marbles, and trash enough to buy the exchange of work, maybe, but not enough to buy even half an hour's to poor freedom. He gave up the idea of trying to buy the boys. However, at this dark and hopeless moment of inspirational hurst upon him, टॉम ने क्या किया. टॉम को एक प्लान करना था कि अपना काम कैसे दूसरों से मैं करवा लूँ और उनके पास से कुछ चीज़ें ले लूँ. तभी टॉम ने कुछ आइडिया किया. ही टूक अप द ब्रश एंड वेंट बैक टू द वर्क. आइडिया कर रहा था और अपना काम फिर से स्टार्ट कर लिया. बेन रॉजर्स केम्स इनटू द साइट प्रेजेंटली. और वहाँ पर ये कि बेन आ गया था. The very boy all boys was ridiculous he had been reading. Ben's gates was the hop, skip and jump proof enough that hearts was light and anticipation high. वहाँ पर जो बेन आ गया था जंप करके हुए टॉम के पास आ गया था क्योंकि उसको इंटरवल मिल गया था काम करने समय. बट टॉम को इंटरवल मिला क्या? नहीं, उसको 30 yards कलर करने थे. He was eating an apples and giving a long melodiously whoop. एप्पल खाते समय मधुर सी आवाज़ निकाल रहा था और वो टॉम को इरिटेट करने के लिए आया था. At the intervals, he was pretending to be the steamboats and captain and engine bells all combined, so had imagined himself standing on his hurricane stake and giving order to executing them. ये बेन कहाँ काम करता था? स्टीम बोट के पास कैप्टन की तरह काम करता था. वो उसका काम इंटरवल ख़त्म करने के बाद टॉम के पास आया और टॉम को वैसे ही बिहेव करने लगा. उसको लग रहा है कि मैं कैप्टन हूँ और टॉम को मैं दे रहा हूँ काम, जल्दी करो. लुक एट दिस पिक्चर्स, यू कैन रिकॉग्नाइज. इस पिक्चर से आपको पता चल जाता है. सेट हर बैक ऑन स्टेप बोर्ड. टिंग लिंग लिंग चाव चाव चचवाव चाव. His right hand meantime described the stately circles for its representing the 40-foot wheels. जैसे स्टीम बोर्ड पे वो वर्क करता था यहीं पर वैसा ही कर लेता. टिंग लिंग लिंग चाव चचाव वाव चाव. ऐसे वो टॉम को इरिटेट कर रहा था अपने काम से. He tried very hard to get Tom's attentions, but Tom wait on whitewashing paid no attention the steamboat की तरफ, बेन की तरफ टॉम ने देखा भी नहीं कि वो अपना काम करने लगा था. Ben started the movement and said, "Hey, yeah, you are up the stump, aren't you?" No answer. Tom surveyed his famous last
touch with eyes, and artist then gave the brush another gently sweeply survive the result as before. Bang rang alongside him Tom's mouth water. जब बेन वहाँ पर आया था तो टॉम उसके पास देख भी नहीं रहा था, बट ये बेन टॉम का अटेंशन मेरी तरफ अपनी तरफ खींचने लगा। बट टॉम ने ऐसा किया क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा मजाक, मेकिंग फन ऑफ मी, इसलिए यहाँ पर आया है। बट जब टॉम ने उसके हाथ में का एप्पल देखा तो उसका माउथ इज ऑल्सो वाटरिंग ऑफ टॉम द एप्पल बट स्टक टू हिज वर्क। बट वो एप्पल को देख के उसके मुंह में पानी आया था, बट क्या करे, उसका काम था, वो काम में अटक गया था, स्टक। Ben said, "Hello, old chap, you got to work? Hey!" Tom wheeled suddenly and said, "Why is you, Ben? I was not noticing. Say I'm going to a swimming." टॉम ने कहा, मैं तुम्हारे पास ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हो? बट बैन ने कहा, क्या? मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। आई एम, डोंट यू विश यू कुड? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए? बट ऑफ कोर्स यू डू ड्रदर वर्क, बट मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सारा काम मिला है आज। Wouldn't you? Course you would. To come. Tom contemplated a bit and said, "What do you call works? Why and that works?" Ben ने कहा, टॉम तुम्हें ये काम क्यों दिया इतना बड़ा अंट पॉली ने? टॉम resumed his white washing and answered carelessly. बहुत केयरलेसली उसने आंसर क्या दिया? Well, maybe it is and maybe it's Aunt Polly. All I know. शायद उसको अपने काम की बड़ाई कर रहा था, बट उसको काम पसंद था क्या टॉम को? नो। वो टॉम ने बेन को क्या कहा कि शायद अंट पॉली को मेरे हाथ से काम पसंद है, इसलिए मुझे दिया। सूट टॉम स्वायर, ओ कम नाउ, यू डोंट मीन लेट यू दैट यू लाइक। उस सोच में गिर गया ये बेन। देन ब्रश कंटिन्यू टू मूव, बट टॉम अपना ब्रश कंटिन्यू से यार्ड पर मूव कर रहा था। लाइक इट? वेल आई डोंट सी वाई। आउट विद इट टू लाइक डज अ बॉय गेट चांस टू वाइट वॉश द फेंस एवरी डे। टॉम ने क्या किया? टॉम ने अपनी ब्रैगिंग करते हुए कहा, ही टोल्ड, आई थिंक्स Aunt Polly like me so that he tell to me do this work। बट उसको ये काम पसंद था क्या? नहीं। That put the thing in a new light. Ben stopped nibbling his apples। फिर जब बैन अपने एप्पल खा रहा था उसने अचानक स्टॉप किया टॉम की बातें सुनते हुए। Tom swept the brush daintily back and forth, step to back to note effect. Added touch here and there, criticized the effect. Again Ben watching every move and getting more and more interested, more and more absorbed. Presently he said, जब ये टॉम अपना काम इतने मन से कर रहा था तो बेन देख के उसको जलने लगा। बेन को लगा ये बहुत काम इंटरेस्टिंग है। ब्रश को डुबाना, ऊपर से नीचे मूव करना, टॉप ऑफ द मोस्ट ऑफ यार। अब बेन को भी लगा था मुझे ये काम करना चाहिए एक बार। से टॉम, लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटल। अब क्या हुआ देखो, बेन ने कहा अब मुझे भी करने दो। बट टॉम को तो ये प्लान था कि उसको अपना काम किसी और से करवाना था। Tom considered was about the consent, but the altered his mind. No, I reckon it wouldn't hardly do, Ben. You see, Aunt Polly's awful particular about his fence, right here and street, you know, but if it was the back fence, I wouldn't mind, she wouldn't. Yes, she's awful particular about this fence, and it is got to be done very careful. I reckons there ain't one boys in 1,000, maybe 2,000 that can be way it's got to be done. अब टॉम ने क्या किया? शायद अंट पॉली को 1,000 2,000 में से मैं ही अच्छा वर्कर लगा, इसलिए उसका काम मुझे सौंपा ये यार्ड करने के लिए। बैन बहुत चिंतित में गिर गया क्योंकि बैन को लगा ये इतना अच्छा काम है तो अंट पॉली ने हमें क्यों नहीं दिया, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करने लगा। No, is that so? Oh, come now, let me just try, only just a little. I did let you if you was me. बैन उसको रिक्वेस्ट करने का, प्लीज़ मुझे दे दो। He'd like to honor Sinjun, but Aunt Polly, well, Jim wanted to don't it, but she wouldn't let him. Sid wanted to do it. जब टॉम ने कहा कि जिम को ये काम करना था तो आंट पॉली ने जिम को भी नहीं बोला, और जब सीड को भी करना था तो सीड को भी नहीं बोला, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? And she wouldn't let the seed. Now don't you see how I am a fixer? अब पता चला मैं इस काम में कितना फिक्स हूँ। Just as careful. Now let me try. Say I will give you the core of my apple. Well here, no Ben.
नाउ डोंट, आई एम अफेयर्स आई विल यू ऑल इट। बेन ने कहा कि मैं तुम्हें अपना एप्पल का एक छोटा पीस दूंगा। फिर ये टॉम ने कहा नहीं। फिर बेन ने कहा मैं पूरा एप्पल दूंगा। फिर देखते क्या हुआ। टॉम गेव अप द ब्रश। फिर टॉम ने अपना ब्रश बेन को दिया। रिलेक्टेंस इन हिज फेस बट alacrity in his heart, and while Ben worked and sweated in the sun। फिर बेन ने अपना काम करना स्टार्ट किया। उसको भी मज़ा आ रहा था बट बहुत धूप थी। टॉम सैट इन शेड क्लोज बाय मंचिंग हिज एप्पल। टॉम को तो यही प्लान था कि अपना काम दूसरों से कैसे करवाना था, और टॉम ने बेन के पास से एप्पल लिया और एक झाड़ के नीचे आराम से बैठ गया मंचिंग करते हुए एप्पल्स। द प्लानिंग द स्लॉटर ऑफ मोर इनोसेंट्स, और कैसे दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए वो प्लान कर रहा था। लेट मी काम करते करते थक गया था। देयर वॉज नो लैक ऑफ मटेरियल। फिर और विलेज से बॉयज़ आ गए थे। बॉय केम अलॉन्ग एवरी लिटल वाइल्स, दे केम इन जीर्स एंड रिमेंड द टू वाइट वॉश। अब आधा काम उसका रह गया था क्योंकि बेन ने हाफ कर लिया था। बाय द टाइम बेन वॉज टायर्ड, अब बेन थक गया था। टॉम हैड ट्रेडेड टू नेक्स्ट चांस टू द बिली फिशर, और टॉम ने अब उस विलेज में के एक बॉय बिली फिशर को एक चांस दिया। बट बिली फिशर से उसने क्या लिया, काइट की वजह से उसको वो काम दिया क्योंकि ये काम सभी को इंटरेस्ट लग रहा था। वो ऐसे बढ़ाए मार के बोल रहा था कि काम इतना अच्छा है, इसलिए अब बिली फिशर ने काइट के बदले उसका काम कर लिया था। जॉनी मिलर वॉज बॉट इन टू द डेड रैट एंड स्ट्रिंग टू स्विंग विथ एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे बॉयज़ ने अपना एक एक चीज़ देकर अपना काम, टॉम ने अपना काम करवा लिया था। उसके बाद कौन आया, जॉनी मिलर। उसने क्या लाया था, एक डेड माउस। लेट्स सो ऑन एंड सो ऑन, आवर आफ्टर आवर्स। बाय द मिडल ऑफ द आफ्टरनून टॉम was literally rolling in wells he had beside the thing before mentions। अपने जो उसने प्लान किया था वैसे उसी हिसाब से उसका प्लान चल गया। उसके पास कौन कौन सी चीज़ें जमा हो गई देखो। 12 marbles, part of Joy's harp, a piece of blue bottle glass to look through, a spool cannons, a key that wouldn't unlock anything, a fragments of chalk, a glass stopper of the decanter, a tin soldiers, a couple of tadpoles, 6 firecrackers, a kitten with only one eye, grass doorknobs, dog collars, handle of knife, 4 pieces of orange peels, and the dilapidated old window sash। इतने सारे थिंग्स उसको मिल गए थे, ऑब्जेक्ट्स। काम जो भी आता था उनसे चीज़ें लेता था और अपना काम करवा लेता था। Nice good ideal time all while plenty of company and friends had 3 course whitewash on it. The hand hadn't run to whitewash it, he could have bankrupted every boy its villages. Tom had discovered a great law of a human action without knowing it, namely that order to make man boy covetes things to know only necessary to make the thing difficult to attain। The work consists whatever a boy oblique to the other play consists whatever the boy not oblique to do। अब टॉम ने बहुत सारे काम अपने लड़कों से कर लिए थे। इसी स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, यही बताना चाहता है कि टॉम ने खुद से कहा है कि यह इतनी खोखली दुनिया नहीं थी। आखिरकार उन्होंने मानव क्रिया का एक बड़ा कानून खोजा था। बिना यह जाने कि एक आदमी या एक लड़के को एक चीज़ बनाने के लिए केवल उस चीज़ को प्राप्त करना मुश्किल बनाने के लिए आवश्यकता है, यदि एक महान और बुद्धिमान दार्शनिक होता है। ऐसे ही मार्क ट्वेन स्टोरी से हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे टॉम ने अपना काम करवा लिया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन्स। टाइम white washes the fence। okay, in next video I will give you the question answer of this lesson।